students, in the last lecture we discussed the different terminologies of a gear tooth. हमने अच्छे से with the help of this figure we learned what a top land is, what a bottom land is, what is meant by face, flank. Then we learned about a circular pitch, tooth thickness, addendum, dedendum, addendum circle and dedendum circle. All these terminologies were discussed in the previous lecture. Now we also discussed that circular pitch is given by, mathematically it is given by PC equals to pi into d by t, where d by t is also module which is denoted by m. So we can say that circular pitch PC is equal to pi into m. Moving forward, we also defined the term diametral pitch, which is nothing but ratio of which is nothing but denoted by PD, and it is equal to T by D. Now we defined module, that is the pitch diameter divided by number of teeth. Now let us see some more terminologies. The next terminology is pressure angle. Now the pressure angle is the angle which the common normal to the two teeth at the point of contact makes with the common tangent at the pitch point. Remember, wherever the pitch circles of both the mating gears meet, that point is pitch point. So we can say that if this is gear number 1 and the second gear, the upper gear is gear number 2, we can say that gear number 1 has dedendum circle, pitch circle and addendum circle. So these are highlighted circles are the circles, that is dedendum circle, pitch circle and addendum circles for gear number 1. And similarly for gear number 2, we can say that gear number 2 has the dedendum circle as this one. We have pitch circle for gear number 2, this highlighted one, and say this is the addendum circle for gear number 2, right? Now see this, we can say that this circle is pitch circle for gear number 1, for gear number 2, and this circle is the pitch circle for gear number 1, and both the pitch circles are meeting at these points. This is the point where both the pitch circles of both the gears are meeting, so that point is termed as pitch point. Let me show it on the figure. This point, ये जो point है, this point P is the pitch point. So can we say that pitch point is nothing but the point where the pitch circles of both mating gears meet, है ना, जहाँ दोनों mating gear के pitch circle मिलेंगे, that point is pitch point. So in the shown figure, this point P is the pitch point, right? Now अब बात करो प्रेशर एंगल की. क्या कह रहे हैं हम कि प्रेशर एंगल इज द एंगल विच द कॉमन नॉर्मल एट द टू द टू टीथ. कॉमन नॉर्मल, दोनों टीथ को कॉमन नॉर्मल, मेटिंग गेयर्स में दोनों टीथ को कॉमन नॉर्मल कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब ध्यान दो, अगर मैं इस दोनों टीथ को कंसिडर करूं, सो ये टीथ है गियर नंबर 2 का और ये टीथ है गियर नंबर 1 का. तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों टीथ इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पर कांटेक्ट में है, तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहां ध्यान दो, हमने कहा था पॉइंट ऑफ पी, ये पिच पॉइंट है, राइट ना, कॉमन पॉइंट ऑफ पिच सर्कल्स ऑफ बोथ मेटिंग गियर्स. और पॉइंट सी को क्या कह रहे हैं? पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? जहां पर दोनों गियर्स कांटेक्ट में हो, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैं कॉमन नॉर्मल की बात करूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन नॉर्मल, मतलब कि पहले मैं कंसीडर करूंगा कॉमन नॉर्मल, तो अगर दोनों भी टीथ यहाँ कुछ इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, तो पहले मैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा,
ना, यही लाइन होगी जो दोनों भी प्रोफाइल को टेंजेंट रहेगी, तो उसे मैं कॉमन टेंजेंट कहूँगा। और उस कॉमन टेंजेंट को जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यही परपेंडिकुलर लाइन हमारी कॉमन नॉर्मल होगी, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट सी के ऊपर ये जो रेड लाइन दिखाई हुई है, दैट इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब हमारी डेफिनेशन को देखते हैं। क्या कहता है कि प्रेशर एंगल जो है दैट इज एंगल विच द कॉमन नॉर्मल, मतलब कि ये लाइन कॉमन नॉर्मल है, एंगल विच द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ये कॉमन नॉर्मल है, वो कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट के ऊपर कॉमन टेंजेंट। अब पिच पॉइंट तो हमारा पी है, पिच पॉइंट के ऊपर कॉमन टेंजेंट कौन सा रहेगा, जो लाइन, ये लाइन रहेगी हमारी पिच पॉइंट के ऊपर कॉमन टेंजेंट, राइट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉमन नॉर्मल कौन सा है, ये है हमारा सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ से पास होगा हमारा ये कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। सो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा उसे हम कहेंगे प्रेशर एंगल। जनरली प्रेशर एंगल को फाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो अब हम एक बार डेफिनेशन को अच्छे से और देख लेते हैं कि प्रेशर एंगल इज द एंगल विच द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स विद द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट, राइट। अच्छा भाई, अब बात करते हैं प्रेशर लाइन की। तो इस एनिमेशन में जो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द मेटिंग गियर है, उस कॉमन नॉर्मल को हम प्रेशर लाइन कहते हैं, राइट। कॉमन हमारे पिछली वाली फिगर में क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट सी था, ये पॉइंट सी ही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट सी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वहाँ पे कॉमन नॉर्मल तो यही है ना, तो जो कॉमन नॉर्मल है उस कॉमन नॉर्मल को हम प्रेशर लाइन कहते हैं, राइट। इस कॉमन नॉर्मल को हम प्रेशर लाइन कहेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस हैं, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रिसेस, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजीज हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए प्रेशर लाइन और प्रेशर एंगल इतना हमारे ध्यान में रहने दो, राइट। अब इस फिगर को अगर मैं यहीं पर अच्छे से एनालाइज कर लूँ तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये गियर नंबर 1 कहें हम और दिस इज गियर नंबर 2, तो गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 के दोनों भी टीथ, मतलब दोनों भी गियर मेश हो रहे हैं, राइट। अब इनकी मेशिंग देखो कहाँ हो रही है। क्या मैं कह सकता हूँ कि जब दोनों टीथ दोनों तरफ से आ रहे हैं तो कुछ यहाँ इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट के ऊपर दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, राइट। इस पॉइंट के ऊपर दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सो वहाँ से और दोनों वही पॉइंट आगे बढ़ते आ रहा है कहाँ तक, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ कहीं तो भी कॉन्टैक्ट छूट रहा है। ध्यान दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ, एंगेजमेंट कहाँ हो रही है, कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर चालू हो रहा है और डिसएंगेज कहाँ हो रहे हैं, इस पॉइंट तक, राइट। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक स्पेसिफिक पॉइंट कांटेक्ट में रह रहा है। यहाँ पॉइंट एंगेज हो रहा है, आगे ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, और ट्रैवल कहाँ से हो रहा है, प्रेशर लाइन के ऊपर, और यहाँ पॉइंट डिसएंगेज हो रहा है। इस फिगर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यू बेटर इस फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, सिंस आगे के सभी कंसेप्ट्स आपको इस फिगर को अगर आपने एनालाइज कर दिया तो आगे के कंसेप्ट बहुत आसान जाएंगे। सो एक बार और इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि ये गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 दोनों मैच हो रहे हैं। ध्यान दो, गियर नंबर 2 का पिच सर्कल है और गियर नंबर 1 का पिच सर्कल ये है, और यहाँ पर कहीं हमारा दोनों पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये हमारा पिच पॉइंट होगा, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं दिस पॉइंट इज द पिच पॉइंट। नाउ पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट कहीं यहाँ चालू हो रहा है और पॉइंट कहाँ डिसएंगेज हो रहा है, यहाँ से।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर लाइन हमेशा प्रेशर लाइन हमारे पिच पॉइंट में से ही पास होगी, राइट। सो प्रेशर लाइन हमारी पिच पॉइंट में से ही पास होगी। पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी पाथ ट्रैवल करेगा उसे हम कहेंगे प्रेशर लाइन, राइट। जिस लाइन के थ्रू हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ट्रैवल करेगा उस लाइन को हम प्रेशर लाइन करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी और समझने वाली बात है, ध्यान दो। जब मैं कहूंगा कि गियर नंबर वन का डिडेंडम सर्कल, गियर नंबर वन का डिडेंडम सर्कल मतलब कि इस सर्कल की बात कर रहा हूं, और गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल, तो ऑब्वियसली ये सर्कल, राइट। अब ध्यान दो, गियर नंबर 2 का डिडेंडम सर्कल और गियर नंबर 1 का अडेंडम सर्कल, और जो हमारी प्रेशर लाइन है वो प्रेशर लाइन गियर नंबर 1 के डिडेंडम सर्कल और गियर नंबर 2 के डिडेंडम सर्कल को टेंजेंट ही है ना भाई, राइट ना। ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, गियर नंबर जो हमारी प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन तो हमें समझ गई कि जो प्रेशर लाइन होगी वो लाइन होगी जहां से हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ट्रैवल करेगा, राइट। और ये जो प्रेशर लाइन है वो हमेशा पिच पॉइंट में से पास होगी। अब प्रेशर लाइन तो यही है ना, यही हमारा प्रेशर लाइन है, हमारा पिच पॉइंट कहीं यहाँ है। अब यहाँ ध्यान दो, ये हमारा गियर नंबर 2 का डिडेंडम सर्कल है, यह हमारा गियर नंबर 1 का डिडेंडम सर्कल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर लाइन एक ऐसी लाइन है जो दोनों भी मेटिंग गियर के डिडेंडम सर्कल को टेंजेंट रहेगी, डिडेंडम सर्कल को टेंजेंट रहेगी हमेशा हमारी प्रेशर लाइन, राइट। अब इसके अंदर थोड़ा और ध्यान देंगे। हमने क्या कहा कि प्रेशर लाइन दोनों भी डिडेंडम सर्कल को, दोनों मेटिंग गियर के डिडेंडम सर्कल को टेंजेंट रहेगी। अब गियर नंबर 1 हमारा ये था, गियर नंबर 2 था हमारा ये, गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल, गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल यही है। गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल जहां भी प्रेशर लाइन को कट करेगी, ये हमारा पॉइंट, वहां हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, राइट। और गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल, गियर नंबर 2 का अडेंडम सर्कल कौन सा है, ये वाला, ये प्रेशर लाइन को जहां कट करेगी इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट होगा, राइट। अब डायरेक्शन के हिसाब से पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट ये हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट ये होता है अगर हम इनकी डायरेक्शंस रिवर्स कर दें, राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि द पॉइंट वेयर द अडेंडम सर्कल्स ऑफ the point where the addendum circle of mating gears cut the pressure line forms the point of engagement and point of disengagement on the pressure line, right? अब point of disengagement और point of engagement कहाँ रहेंगे हमेशा, प्रेशर लाइन के ऊपर। प्रेशर लाइन के ऊपर कहाँ रहेंगे, जहाँ भी दोनों भी मेटिंग गियर्स के अडेंडम सर्कल्स प्रेशर लाइन को कट करेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अडेंडम सर्कल प्रेशर लाइन को यहाँ कट कर रहा है, तो ये हमारा या तो हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट रहेगा या पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट। और अडेंडम सर्कल दूसरे गियर का हमारा प्रेशर लाइन को यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ हमारा या तो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट रहेगा या पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट रहेगा। तो अब हमने इस एक ही फिगर के ऊपर क्या समझ के लिया कि प्रेशर लाइन जो होती है वह हमेशा पिच पॉइंट से पास होती है, प्रेशर लाइन हमेशा बेस सर्कल को टेंजेंट रहेगी, प्रेशर लाइन को दोनों भी मेटिंग गियर्स के अडेंडम सर्कल्स कट करेंगे। जहां पर अडेंडम सर्कल्स प्रेशर लाइन को कट करेंगे वो पॉइंट्स पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट रहेंगे, राइट। तो यहां तक तो भाई बात इतनी क्लियर होती है। अच्छा भाई, अब यही बात अगर हम पिछले फिगर में जो हमारी प्रेशर एंगल वाली फिगर थी उसमें अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा पिच पॉइंट था, पॉइंट पी हमारा पिच पॉइंट है, ये बेस सर्कल दैट इज डिडेंडम सर्कल,
और ये डिडेंडम सर्कल, और जो हमारी प्रेशर लाइन है, ये रेड वाली प्रेशर लाइन, एग्जैक्टली ये प्रेशर लाइन ही तो टेंजेंट है ना, यही लाइन तो टेंजेंट है बेस सर्कल्स को। तो हमने जो अभी कहा था कि प्रेशर लाइन हमेशा बेस सर्कल को टेंजेंट रहेगी, ऑफ कोर्स टेंजेंट ही है। अब बात आते हैं पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट की। तो ये जो पॉइंट Q1 है और पॉइंट Q2 है, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं हमें? प्रेशर लाइन के ऊपर। प्रेशर लाइन के ऊपर अडेंडम सर्कल एक गियर का और अडेंडम सर्कल दूसरे गियर का जहाँ कट कर रहे हैं, राइट, ये देखो अडेंडम सर्कल दूसरे गियर का जहाँ कट कर रहे हैं, वही हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है, राइट। तो एक फिगर से हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। अब एक बात ध्यान दो कि हम गियर्स हमेशा पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करेंगे। गियर्स विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, इट इज़ अ पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट। लेकिन पावर ट्रांसमिट करते हुए हमारा वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, हमारे पावर लॉसेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें पावर लॉसेस नहीं होने देना है, मतलब कि हमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए हमें जो हमारा टीथ का प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा रखना चाहिए कि उनके बीच की स्लिपिंग ना हो, उनके बीच की स्लिपिंग ना हो, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा बना रहे। तो लॉ ऑफ गियरिंग जो है वो स्टेट करता है कि अगर हमें वेलोसिटी रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रखना है, इन केस फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू सरफेसेस। अब ये सरफेसेस कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो जो कॉमन नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमेशा पिच पॉइंट में से पास होना चाहिए। इसके पहले जो हमने फिगर देखी, यहाँ हमने कहा, क्या कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट C इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ही हमारा कॉमन नॉर्मल पास हो रहा है और ये कॉमन नॉर्मल पिच पॉइंट में से ही पास हो रहा है। लेकिन ये तो स्पेसिफिक गियर्स की बात हो गई। लेकिन अगर मैं गियर को न कंसीडर करते हुए किसी भी प्रोफाइल को कंसीडर करूं, तो वो कहता है कि अगर ये प्रेशर लाइन पिच पॉइंट में से पास होगा, मतलब कि जो कांस्टेंट, जो कॉमन नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो अगर पिच पॉइंट में से पास होगा तभी हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, राइट। तो जो फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी ratio, it is required that the common normal at the point of contact must always pass from pitch point. Remember, we are talking about law of gearing, और यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन हमेशा इसके ऊपर रहता ही है। द क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग का स्टेटमेंट क्या है? The law of gearing states that for constant angular velocity ratio of two surfaces, the common normal at the point of contact must always pass through the pitch point. Common normal point of contact के ऊपर अब ध्यान दो। अगर इस आर्बिट्रेरी शेप अगर मैं कंसिडर कर दूं, तो आर्बिट्रेरी शेप, एक ये जो शेप हमने लिया है ये शेप, और दूसरा शेप कुछ ऐसा, राइट। तो ये दो हमारे आर्बिट्रेरी शेप, दोनों भी कांटेक्ट में कहाँ आए हैं? पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर अगर वो कांटेक्ट में आए हैं तो यहाँ पॉइंट ए पर ये हमारा कॉमन टेंजेंट होगा। कॉमन टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा कॉमन नॉर्मल होगा। अब ये जो कॉमन नॉर्मल है अगर पिच पॉइंट में से पास होगा तो ही हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। अब पिच पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ भी दोनों सरफेसेस के पिच सर्कल होंगे। अब पिच सर्कल तो इमेजिनरी होता है, तो वो तो हमें दिख नहीं रहा, राइट। तो हम कुछ
इसका एक छोटा सा प्रूफ लेंगे आगे। इस प्रूफ को मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, उसको रिकॉर्ड करके आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब। तो यू बेटर बी इन कॉन्टैक्ट एंड दैट टू in continuous contact, in sequential contact, right? So thank you. We stop here and we'll continue in the coming lecture. Thank you.